Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 10th. Our subject is SST and we are discussing your chapter 1 which is Glorious India. From the past so many videos, and today we will be discussing about the Pallav dynasty, the Chalukya dynasty, external invasions and assimilation, Shaks, Huns and Kushans. Okay. So before starting the class, let me ask all of you that how are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying these online classes and doing all your assignments which I am giving you after each and every video. So before starting the class, take out book and keep a pencil in your hand. So let us begin our class now. In the previous class, we have talked about this Das and Devi Das system also. Now today we will be starting from Pallav dynasty, as I have explained a little bit of it to you in the previous video. But today we will start from here only. Rulers of this dynasty ruled the present day district of Arcot, Madras, Trichinnapalli and Tanjore. सो जो रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के, उन्होंने एट प्रेजेंट जो ये जो जगह हैं जिनका नाम है आरकोट, मद्रास, त्रिचिन्नापल्ली एंड तंजौर, इनको उन्होंने रूल किया था. ओके. इन द इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ फर्स्ट पल्लव किंग इज विष्णुगोप. और क्या कहा गया है कि इंस्क्रिप्शन में जो पहले जो पल्लव किंग है उनका नाम क्या था? विष्णुगोपा, जो कहाँ से थे? कांची से थे. ओके. एंड सिम्बा विष्णु असेंडेड द थ्रोन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th century. एंड सिम्हा विष्णु ने क्या किया था? थ्रोन को जीत लिया था इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th century AD. आफ्टर दैट द पल्लव्स रूल्ड फॉर अबाउट 2 centuries. और इसके बाद पल्लव्स ने 2 centuries तक रूल किया था. कब तक रूल किया था? 2 centuries तक. मेजर पल्लव किंग्स इंक्लूडेड महेंद्र वर्मन 1, अरसिम्हा वर्मन 1, परमेश्वर वर्मन 1, परमेश्वर वर्मन 2, नंदी वर्मन एंड नंदी वर्मन 2 एंड अपरिचित. ओके. सो ये सारे पल्लव डायनेस्टी के हमारे किंग्स हैं. यू कैन सी द इम्पॉर्टेंट किंग्स, द मेजर किंग्स ऑफ पल्लव डायनेस्टी. Mahendra Varman was a great architect. Now if we talk about the Mahendra Varman, he was a great architect. He built many temples of carved stones. Okay. Mahendra Varman also wrote a play named Mata Vilas Prasanna. Okay. Prasanna. ठीक है. मता विलास प्रसन्न, इन्होंने इस नाम का एक प्ले भी लिखा था और बहुत सारे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे. ही ऑल्सो गॉट डग द महेंद्र पॉन्ड, और इन्होंने महेंद्र पॉन्ड जो है ये भी इन्होंने बनवाया. ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड इन अराउंड 610 AD, और चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा इनको हराया गया था. महेंद्र सन एंड सक्सेसर नरसिम्हा वर्मन. नाउ महेंद्र जो किंग थे उनके सन और सक्सेसर जिन्होंने क्या आगे रूल किया, नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड. ये पुलकेशिन सेकेंड है जिन्होंने इनके फादर को डिफीट किया था, तो इन्होंने क्या किया? उसे डिफीट कर दिया इन 642 AD एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल वातापी, और उसकी जो कैपिटल है उसको अपने अंडर ले लिया जो कि थी वातापी. But the Chalukyas took revenge of their defeat in 655. Now the fight is going on. Now what happened when the Chalukya, this king was defeated? They finally took the revenge in 655 AD. Chalukya king Vikramaditya I defeated the Pallav king Parmeshwarman and occupied his capital Kanchi. फिर से वही fighting is going on. Now this Chalukya जो king है विक्रमादित्य ने पल्लव किंग परमेश्वरमन को हराया और उसकी जो कैपिटल थी कांची उसको अपने अंडर ले लिया. The preceding Pallav ruler established the town name जिसको कहा जाता है महाबलीपुरम. और जो पल्लव डायनेस्टी थी, जो पल्लव रूलर्स थे, उन्होंने एक टाउन को रचा, एक टाउन को बनाया जिसको क्या कहा जाता है बेटा? महाबलीपुरम. क्या कहा जाता है? महाबलीपुरम. एंड बिल्ट 5 chariot temples ओवर देयर. और क्या किया? 5 chariot temples वहाँ पे बनाए उसी जगह पर. हेयर रॉक कट स्टैचूज हैव बीन क्रेव्ड. पल्लव रूलर्स बिल्ड टेम्पल इन कांची टू. और पल्लव रूलर्स ने कांची में भी टेम्पल्स बनाए थे. Some of the Pallav rulers were worshipper of Vishnu, while others worship Shiva. As I have told you in the previous classes also, different kings used to worship different gods. So they were the worshipper of Vishnu and Shiva. कुछ जो kings थे वो विष्णु को मानते थे, कुछ जो kings थे वो शिवा को मानते थे. Okay? Yes. Now we will read about the Chalukya dynasty.
चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट हैड परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, तो चालुक्य किंग जो थे पुलकेशिन वन, उन्होंने क्या परफॉर्म किया था? अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था। चालुक्य वातापी रूल फ्रॉम 550 AD टू 757 AD। और चालुक्य ने जो वातापी जो जगह इन्होंने जीती थी, यहाँ पे इन्होंने 550 AD से 757 AD तक रूल किया था। एक्सक्लूडिंग 13 years फ्रॉम 13 years from 642 AD to 655 AD. Among the Chalukya rulers, the fourth king Pulkeshin II was the most famous ruler. अब अगर हम चालुक्य डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये जो पुलकेशिन सेकेंड है ये सबसे फेमस रूलर है इस डायनेस्टी के। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 608 AD और इन्होंने अपना थ्रोन को कब ऑक्यूपाई किया था? इन 608 AD. His empire extended from the river नर्मदा in the north to river कावेरी in the south. और जो इनका एम्पायर था वो नर्मदा रिवर जो कि नॉर्थ में है से कावेरी रिवर जो कि साउथ में है तक एक्सटेंडेड था। He was defeated by the पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन और उन्हें पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन के द्वारा हराया गया था इन 642 AD. Pulkeshin son Vikramaditya II reestablished the glory of Chalukya. पुलकेशिन के जो सन थे विक्रमादित्य सेकेंड, उन्होंने रीस्टैब्लिश किया द ग्लोरी ऑफ चालुक्यास की ग्लोरी को उन्होंने रीस्टैब्लिश किया। चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकेंड डिफीटेड द राष्ट्रकूट किंग इन 973 AD। और ये जो चालुक्य किंग थे विक्रमादित्य सेकेंड, ओके, इन्होंने डिफीट किया राष्ट्रकूट किंग को इन 973 AD एंड फाउंडेड द न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाय मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल। और न्यू चालुक्य डायनेस्टी इन्होंने फाउंड की और कल्याणी उसकी कैपिटल बनी। ओके स्टूडेंट्स, दिस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1973 AD टू 1200 AD। ठीक है, द चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेन्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद चोल रूलर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो चालुक्य किंगडम था ये एक आप कह सकते हैं एक कन्फ्लिक्ट का मुद्दा था बिटवीन द चोल रूलर्स बहुत लंबे समय तक। चोल किंग राजाधिराज डिफीटेड सत्यश्रेया और चालुक्य किंग। और ये जो चोल किंग थे राजाधिराज, इन्होंने डिफीट किया था सत्यश्रेया जो कि एक चालुक्य किंग थे। बट सोमेश्वर वन एवेंज्ड हिज डिफीट बाय नॉट ओनली डिफीटिंग द चोल किंग राजाधिराज इन द बैटल ऑफ कोपम। फिर से वही बेटा, द थिंग इज व्हाट इज गोइंग ऑन इज फाइट एंड रिवेंज। ओके, यस। सो बट सोमेश्वर वन जो है इन्होंने इसकी डिफीट का बदला लिया और चोल किंग राजाधिराज को कोपम के बैटल में उससे उसका बदला लिया, बट ऑल्सो असैसिनेटेड राजाधिराज इन द बैटल। द सेवेंथ किंग विक्रमादित्य सेवेंथ हु वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ विक्रमनका। ओके, जो सेवेंथ किंग थे जिनका नाम था विक्रमादित्य सेवेंथ और वो इस नेम से भी फेमस थे, विक्रमनका, ऑक्यूपाइड कांची एयर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द रीनोन्ड पोइट भिलाना। और इन्होंने क्या किया था? कांची को अपने अंडर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये जो पोइट थे भिलाना, इन्हें क्या किया था? इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। इन्होंने क्या किया था बेटा? जो ये बहुत ही रीनोन पोइट थे भिलाना, इनको इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। ओके, हु ऑल्सो रोट अ बुक नेम रीस्टैब्लिश विक्रमादेव चरिता। क्या है? कौन सी बुक लिखी है उन्होंने? विक्रमांका देव चरिता बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के लाइफ पर बेस्ड इन्होंने एक बुक लिखी थी। ओके, यस। Despite being Hindu, the Chalukyas, kings of Vatapi and Kalyani, gave patronage to Buddhism and Jainism. हालांकि ये लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे पर फिर भी इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को यू कैन से आश्रय दिया और उसको बढ़ावा दिया। ओके, या द चालुक्य किंग्स बिल्ट temples. Famous jurist Vijayaneshwara, who had composed the Mitakshara interpretation of Yagyavalkya Smriti, lived in the Kalyani, which was the capital of Chalukyas. मितक्षरा इज रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदू लॉज। ठीक है, इन्होंने टेम्पल्स बनवाए बेटा, डिफरेंट बुक्स बनवाई। ओके, द वर्ड्स आर अ बिट डिफिकल्ट। मितक्षरा, ओके, जिसमें कि क्या था बेटा? एक बुक थी जो कि हिंदू लॉज से फुलफिल थी, जिसके अंदर क्या थे? हिंदू लॉज इसमें इंक्लूड किए गए थे। सो वॉट यू विल डू, यू विल रीड द पैराग्राफ अगेन सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोर्स एक ही पैराग्राफ में पूरी डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है, so it is difficult for both of us to understand it. Okay,
but if you will read it again and again, then you will get a better understanding. Now let's talk about this, the external invasions and assimilation. शक्स, हुन्स एंड कुशान्स के बारे में अब हम बात करेंगे. Shak was a warrior tribe of Central Asia which had occupied the entire region of Western Afghanistan and Balochistan. शक कौन से बेटा? एक वॉरियर ट्राइब थी, एक वो ट्राइब थी जो कि वॉर में ज़्यादा बिलीव करती थी, जो कि वॉरियर थी ऑफ सेंट्रल एशिया. कहाँ से थी? सेंट्रल एशिया. वो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान और बलूचिस्तान. इन्होंने पूरा का पूरा रीजन वेस्टर्न अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर रखा था. From here the Shaks came to India through Bolan Pass in around 71 AD. और इसी के थ्रू शख्स कहाँ आए? इंडिया में आए थ्रू द बोलन पास in around 71 AD. In the Ramayana and in the Mahabharata, Shak colonies have been mentioned along with the Kamboj and Yavans. Okay, तो रामायण और महाभारत में भी इनका जिक्र किया गया है. In the writing of Kal Chakra, invasion of Shaks of India has been described and they have been addressed as Sagakul. और ये जो क्या कहा गया इन द राइटिंग्स ऑफ काल चर्या में, इन्वेजन्स जो ये लूटपाट किया करते थे शख्स इंडिया पे, इसे डिस्क्राइब किया गया है एज सगाकुल. क्या कहा गया इसे? सगाकुल. दे एस्टैब्लिश द शक रूल इन सौराष्ट्र बाय ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन. और इन्होंने क्या किया? शक रूल अपना एस्टैब्लिश किया सौराष्ट्र में. कैसे? सिंधु रीजन को या इंडस रीजन को अपने अंदर ऑक्यूपाई करके. It is clear from the excavated coins and edicts that one of their branches established its domination of Uttarpat and Mathura. Along with lapse of time, they spread in Avanti, Saurashtra and Maharashtra. और क्या कहा गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो एडिक्ट्स मिले हैं या जो उनके कॉइन्स मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि जो इनका एम्पायर था, जो इनकी डायनेस्टी थी, वो दूर दूर तक फैली हुई थी. ओके, यस, दिस वी गेट टू नो about this dynasty from the excavated coins and the inscription or edicts. Yes, they established the Shak rule in the Saurashtra by occupying Indus region. सिंधु रीजन को इन्होंने ऑक्यूपाई करके अपना जो राज था, जो अपना एम्पायर था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था. It is clear from the excavated coins and edicts that one of their branches established its domination in Uttarpat and Mathura. Along with lapse of time, they spread in Avanti, Saurashtra and Maharashtra. इस तरीके से इन्होंने अपना एम्पायर को ये एक्सटेंड करते रहे. Bosses and Aziz have been among the Shak rulers of Takshila. ये दो जो हैं शक रूलर्स के नाम हैं. The Shak power was demolished by the Pallavs in Takshila. और शक पावर को डिमोलिश किसने किया? गिराया किसने? Pallavs in Takshila. Hamamas and Hagan were the initial Shak Chhatrapas of Mathura. In Singh Shrishak inscription obtained from Mathura. ठीक है, ये जो एक इंस्क्रिप्शन का नाम है सिंह श्रेशक, ये इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला बेटा? मथुरा से. द लेटेस्ट शक किंग रजबुल हैज़ बीन कॉल्ड दैट महाछत्रपा. और ये जो एक किंग है, जो शक किंग है रजबुल, इन्हें क्या कहा गया है? महाछत्रपा. ठीक है. द शख्स ऑफ मथुरा हैड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर अप टू ईस्टर्न पंजाब. और इन्होंने अपना एम्पायर मथुरा से लेके ईस्टर्न पंजाब तक बिछाए रखा था. द कुशांस डिमोलिश द शक पावर इन मथुरा. और कुशांस ने क्या किया? शक पावर को डिमोलिश कर दिया इन मथुरा. ओके, या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Two rulers of Shaharat dynasty of the Shaks, namely Bhumak and Nahapan, are famous. So ये जो दो जो rulers हैं, ये भी बहुत famous है, Bhumak and Nahapan. These Shak ruler annexed several regions from the Satvahans and they established their rule in Maharashtra. और इन्होंने क्या किया? बहुत सारे regions को जीता. किनसे? सातवाहन से. और establish किया अपना rule in महाराष्ट्र, काठियावाड़ and गुजरात. As I have told in you in the previous all the videos कि ये चाहते थे कि इनका जो you can say the empire है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो, सबसे ज़्यादा extended हो. इसीलिए ये लोग क्या किया करते थे बेटा? They used to fight with each other, ताकि उनका empire क्या हो? बड़ा हो जाए और उनका empire सबसे बड़े empire में से count किया जाए. क्या? Okay. Where were we? Yeah. Bhumak and Nahapan are famous. These Shak rulers, yeah.
ड्यूरिंग द रेन ऑफ नहापान, ठीक है, इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज, और नहापान के समय में जो है इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, किससे, वेस्टर्न कंट्रीज से. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एस्केवेटेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड जोगल थम्बी दैट नहापान वॉज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी. और ये कॉइन्स के एक्सकेवेशन से पता चला है कि ये जो नहापान था इनको हराया गया था बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी. इन नासिक inspection, गौतमीपुत्र सतकर्णी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ सहारत डायनेस्टी. और इन्हें क्या कहा गया है, डिस्ट्रॉयर कहा गया है, कि इन्होंने जो पूरी ये जो सहारत डायनेस्टी थी इसको डिस्ट्रॉय किया है. किंग चस्तान हु एस्टैब्लिश्ड द शक डायनेस्टी इन उज्जैनी इज मेंशन्ड अमंग द शक रूलर्स ऑफ उज्जैनी एंड काठियावाड़. ओके, और ये जो रूलर है इनका नाम डिफरेंट किस में बताया गया, डिफरेंट एडिक्ट्स एंड कॉइन्स में बताया गया है. या okay, in their edicts and coins the ruler of this dynasty used the Shak era. Chastan grandson Rudraman was an important ruler. We find information about him from Junagarh inscription. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें ये जो रुद्रमन जो है इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, या Rudraman's empire extended up to east western Malwa, Dwarika, Junagadh, Sabarmati river, Marwad, Indus Valley, northern Konkan and Vindhya mountain range. Now you can see that their empire was so big and so large. It is evident from the excavated coin that Chastan dynasty एंडेड इन 305 AD. और हमें ये कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से, कि ये जो चस्तन डायनेस्टी थी ये कब एंड हो गई बेटा, 305 AD. ओके, आई होप यू गॉट इट टिल हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द हून्स, जिनको हम हूनास भी कहते हैं. Hun was a barbaric tribe of Central Asia just like the Shaks. ये कैसे थे बेटा, बारबेरिक ट्राइब, जिसको कि हमने पहले में पढ़ा कि उनको लड़ाई झगड़ा जो है बहुत अच्छा लगता था, वॉरियर टाइप ऑफ ये ट्राइब थी. एंटर्ड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और इंडिया में इन्होंने एंटर किया थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. दे वर ऑल्सो कॉल्ड दैत्यास. उन्हें क्या कहा जाता था, दैत्य भी कहा जाता था. First, they invaded India during the reign of Skandgupta in around 458 AD. 458 AD में इन्होंने जो है इन्वेड किया था, भारत को लूटपाट की थी जब स्कंदगुप्त का रूल चल रहा था. एंड वर डिफीटेड, और इन्हें हरा दिया गया था. आफ्टर सम टाइम अ चीफ नेम्ड तोरमन डिस्ट्रॉयड द गुप्त एम्पायर एंड गेन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. और उसके कुछ टाइम बाद एक चीफ जिनका नाम था तोरमन ने डिस्ट्रॉय किया गुप्त एम्पायर को और एक टाइटल गेन कर लिया जिसका नाम था महाराजाधिराज. बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब, राजपुताना, सिंध एंड मालवा. कैसे, पूरा कंट्रोल अपना लेके किस पे, पंजाब पे, राजपुताना, सिंध एंड मालवा पे. तोरनमन सन्स महिर कुल राइन बिगेन इन 510 AD. नव ये तोरनमन के जो सन थे महिर कुल, इनका जो राज था वो कब से शुरू हुआ, 510 AD. एंड सियालकोट वॉज द कैपिटल. दिस वॉज द कैपिटल. महिरकुल हेटेड द बुद्धिस्ट एंड भिक्षुस एंड ही यूज टू हेट द बुद्ध जो धर्म है और जो भिक्षुज हैं इनको ये हेट किया करते थे. ओके, एंड ही डिस्ट्रॉयड वेरियस मॉनेस्ट्रीज एंड स्तूपास. और इन्होंने क्या किया, मॉन्स्ट्रीज जो थी उनके डिफरेंट किंग्स ने उनको स्टैब्लिश करके दिया था, उनको पैट्रोनेज दिया था डिफरेंट रिलीजन को, स्तूप्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. मालवा किंग यशोधर्मन डिफीटेड हिम. नाउ देयर वाज अ किंग ऑफ मालवा हु डिफीटेड हिम. आफ्टर हिज डिफीट ही वेंट टू कश्मीर एंड एस्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर देयर. और उससे हारने के बाद ये कहाँ चला गया, कश्मीर, और अपनी एम्पायर इसने वहाँ पे, अपना राज्य उसने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया. After the invasion of Hunas, the Gupta Empire came to an end and the political unity ended. The country was divided into small parts. और क्या हुआ, ये जो हुनास की जो हुन्स ने जो क्या की थी बेटा, ये जो इन्होंने आके इन्वेजन किए थे इंडिया में, इसने क्या किया, इंडिया की जो यूनिटी थी उसको ख़त्म कर दिया और कंट्री को डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे पार्ट्स में कंट्री को फिर से डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द कुषाण डायनेस्टी. ओके, कुषाण आर ऑल्सो नोन एज यहूजीज भी कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, यहूजीज. Yahuzi tribe was divided into 5 parts. Okay, and Yahuzi tribe was divided into 5 parts. One of these tribes ruled
सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और कुछ कुछ ट्राइब्स ने इनकी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया को रूल किया था. सो बेटा दिस डायनेस्टी वॉज डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स. ठीक है, तो ये कजूला कडफेसीज की बात करें अगर हम, जो ये 5 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट था, ही स्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ दिस ट्राइब. ही मर्ज सदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंधार एंड अ पार्ट ऑफ पर्थिया इन हिज एम्पायर. और इन्होंने क्या किया, इस पूरी ट्राइब की ग्लोरी को स्टैब्लिश किया. और मर्ज किस किस को किया, सदर्न अफगानिस्तान को इन्होंने मर्ज किया काबुल के साथ, कंधार के साथ, एंड अ पार्ट ऑफ पर्थिया इन हिज एम्पायर. पूरा एम्पायर इन्होंने इन पार्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया. ही ऑल्सो अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन, और वैदिक रिलीजन को भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया. नाउ विमा कडफिसीज सेकंड के बारे में. ही रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि सेकंड पार्ट था, इनके 5 पार्ट थे उसमें से सेकंड पार्ट था. इन्होंने एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ इंडिया पर रूल किया. ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शिवा, शिवा के वो फॉलोअर थे. ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स इमेज ऑफ त्रिभुज त्रिशूलधारी वॉज देयर. ओके, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी लॉर्ड शिवा हैव बीन इंस्क्राइब. तो इनके जो नंदी हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं, त्रिभुजा और त्रिशूलधारी के जो पिक्चर्स हैं, वो इनकी हम किस पे देख सकते हैं, कॉइन्स पर देख सकते हैं. ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. और इन्होंने क्या किया, गोल्ड कॉइन्स को सर्कुलेट किया ऑन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, सो हमने क्या देखा कि इन द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द वीमा कडफीस, इनके समय में पहली बार इनके खुद के नाम से गोल्ड कॉइन्स को इंडिया में सर्कुलेट किया गया. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कनिष्क, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया. ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जो 4th काउंसिल हुई थी, ठीक है, जो 4th काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो इनकी प्रेसिडेंटशिप में हुई थी और इन्हीं के समय हुई थी. हिज फर्स्ट कैपिटल वॉज पेशावर, पेशावर इनकी पहली कैपिटल थी. एंड हिज सेकेंड कैपिटल वॉज मथुरा, जो दूसरी कैपिटल थी वो थी मथुरा. ही स्टार्टेड अ न्यू एरा इन 78 AD, और 78 AD में इन्होंने एक न्यू एरा शुरू किया विच इज़ रीनोन्ड एज द नेम ऑफ शक एरा, जिसे कि शक एरा के नाम से जाना जाता है. कनिष्का कॉन्कर्ड कश्मीर एंड स्टैब्लिश्ड अ टाउन नेम कनिष्कपुर, और इन्होंने कश्मीर को जीतकर एक टाउन को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था कनिष्कपुर. ही ऑल्सो गेन विक्ट्री ओवर काशागर, यारकंदन, खोटान, और इन जगह पर भी इन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की थी. अ गोल्ड कॉइन विच हैज़ बीन एस्केवेटेड फ्रॉम महास्थन या बोगरा हैज़ अ स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्का इंस्क्राइब्ड ऑन हिम. और एक कॉइन मिला है हमें बोगरा से, उसमें इनकी एक स्टैंडिंग पोजीशन इंस्क्राइब की गई है. अनदर स्टैचू ऑफ कनिष्का हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा, और जो एक और स्टैचू है वो इनकी कहाँ से पाई गई है, मथुरा से. इन दिस स्टैचू ही इज़ वेयरिंग अ रोब अप टू हिज नीज विथ हैवी बूट्स, जिसमें कि इनको एक रोब पहने हुए दिखाया गया है हैवी बूट्स के साथ. ऑन अ कॉपर कॉइन कनिष्का हैज़ बीन शोन परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस एट एन अल्टार, और एक जो कॉइन है इसमें इन्हें सेक्रीफाइस करते हुए भी दिखाया गया. In the royal court of Kanishk, Buddhist intellectuals like Pashav, Vasumitra, Ashwaghosh, famous mathematician like Nagarjuna, and renowned surgeon like Charak were present. The Mahayana sect of Buddhism advanced and spread during the Kanishk reign. और इनके राइन के भी समय, इनके राज के भी समय बहुत कुछ बेटा जो है डेवलपमेंट हुए हैं. लाइक मैथमेटिशियन जो थे, जो पहले सर्जन थे चरक, वो भी इनके समय में प्रेजेंट थे. इन नॉर्थ इंडिया द कुशान किंग्स रूल टिल 230 AD, और नॉर्थ इंडिया में, भारत में जो कुशान किंग है उन्होंने 230 AD तक रूल किया. एट दैट टाइम इंडियाज ट्रेड विथ रोम वॉज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम वेरी प्रॉस्परस. और उस समय इंडिया का जो ट्रेड था वो रोम के साथ बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉफिटेबल था, और इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री बन चुकी थी. Now the last and the final topic is assimilation. Shak, Huns and Kushans are all three were foreign tribes, तीनों foreign tribes थे जैसे कि हमने पढ़ा. Indeed, they ruled India, फिर भी इन्होंने भारत को रूल किया. But gradually they assimilated into Indian society and culture. But धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंडियन सोसाइटी और कल्चर में मिलते चले गए, assimilate होते चले गए.
Due to the liberalist policy of India, these barbaric tribal clans become a part of society. और क्या हुआ, ड्यू टू द लिबरिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो लिबरिस्ट पॉलिसी है उसके साथ क्या हुआ, ये जो क्लैंस है ये एक पार्ट ऑफ सोसाइटी बनते चले गए. इट मीन्स दे स्टार्टेड एसिमिलेटिंग इन आवर सोसाइटी. द कुशान रूलर्स वर एडर्न फॉलोवर्स ऑफ वैदिक रिलीजन. जो कुशान रूलर्स थे वो वैदिक रिलीजन के फॉलोवर थे. एंड दे रिमेन लॉयल टुवार्ड्स सत्वित सेक्ट. और ये जो शिव जी के जो सेक्ट है उसकी तरफ ये इनकी हमेशा जो है पूजा अर्चना आस्था बनी रही. सर्विस ऑफ बुद्धिज्म डन बाय कनिष्क मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग टू रूल इन इंडिया. ओके, और ये जो कनिष्क की बात करते हैं हम, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग टू रूल इंडिया. So students, this was your chapter. Finally it ended, and thank God that it ended, and now we will start a new chapter. Till then, take care of yourself, take care of your family. Don't go outside, stay at your home, and try to learn about this. Try to learn about Kanishk, and last pages पे कनिष्क की पिक्चर दे रखी है और कुषाण पीरियड के कॉइन्स दे रखे हैं. Thank you so much students. Thanks again.